Good morning, children. So, from the picture, can you identify what is the topic today? Yes, correct. We are going to study animal kingdom today. So, animals, as you can see from the picture, there are lot many animals, and in this chapter we are going to study about the classification of animals, their characters, the basis of classification, different phylums and their examples. This is very interesting chapter that we are going to study. Now, in this chapter, what are animals? Animals are the group of organisms which are multicellular. Multicellular means which are having many cells. Then these are eukaryotic. Eukaryotic का मतलब true nucleus is present. Okay. Then they have heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition they obtain their food. वो अपना खाना दूसरे लोगों से लेते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? Heterotrophic nutrition. And mobility. Mobility मतलब the ability to move, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. And yes, they are without cell wall. इनमें सेल वॉल नहीं होती. करेक्ट. These are without cell wall. The main difference between plants and animals that is still there, they don't have a cell wall. If these characteristics are there, then only we say that it is a animal. Okay. Some exceptions are always there. Biology is a science of exceptions. Now, what are the basis of classification? ये classification किया क्यों जा रहा है? There are near about 1.7 million species of animals. इतने सारे animals हैं, इतने सारे नाम याद रखना, इतने सारे characters याद रखना. Is it easy? It is not easy. So therefore, what we do classification. But classify करने का कुछ ना कुछ एक basis तो होना चाहिए. वो क्या basis है? The first one is level of organization. उसकी body किसकी बनी हुई है? Either it is made up of cell, or it is made up of tissue or organ system. Cell है, tissue है, organ है या organ system. Then next, is the body symmetrical? Symmetry मतलब क्या हम can we divide the body into two equal halves? That is called as symmetry. Then germ layers, कितनी germ layers present है? If there are two germ layers present, then it is diploblastic, and if three germ layers are present, it is called triploblastic. अगर दो germ layers हैं तो diplo, और अगर तीन germ layers हैं तो triploblastic. Then again क्या body cavity present है or absent? If the body cavity is present, then coelomate, and if the body cavity is absent, then they are called acoelomate. मतलब without a coelom, body में cavity नहीं है. And last, segmentation. What is segmentation? Segmentation is when the body of the organism can be divided into segments. छोटे छोटे हिस्सों में partition हो जाए, then that is called as segmentation. If true segmentation is present or not, that is the basis of classification. So these are our basis of classification. The next one is क्या germ layers present है? कौन सी germ layers present है? अभी हमने बात करी, if two germ layers are present, what are those two germ layers? First one is ectoderm, जो बाहर वाली है वो ectoderm है, और जो अंदर वाली है वो endoderm है. So one is ectoderm and one is endoderm. So two germ layers are there. So that is why the name diploblastic. इसके बीच में कभी कभी non-living layer is also present, and that layer is called as mesoglea. उसका नाम क्या है बेटा? Mesoglea है. So mesoglea भी present हो सकती है. But in case of triploblastic, there are three germ layers present. The first one is ectoderm, the second one is mesoderm, which is present in the middle, and the third one is endoderm. Because three germ layers are present, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? Triploblastic. So 1, 2,
3. In the center, this is our digestive cavity. इसमें से क्या जाता है बेटा? The food moves. That is why these are called as germ layers. All the organs, सभी organs किन से बनते हैं बेटा? These are made from these germ layers. Okay. The next one. उसके बाद हम बात करते हैं अगली segmentation की. Whether the body is divided into segments or not. अगर बॉडी में ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, ओके, देन दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन. उस ट्रू सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? द ट्रू सेगमेंटेशन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. और अगर ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ सेगमेंटेशन इट इज प्रेजेंट फ्रॉम आउटसाइड, ये सिर्फ बाहर से है, प्रेजेंट फ्रॉम आउटसाइड, सिर्फ बाहर ही है, अंदर नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स सेगमेंटेशन. झूठा है, बाहर बाहर से डिवीजन है, अंदर से कोई डिवीजन नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स सेगमेंटेशन. दिस इज आवर एनिमल किंगडम बेसिस ऑफ डिवीजन. चलिए अब हम शुरू करते हैं फाइलम. अलग अलग फाइलम और उनकी कैसे कैसे उसमें. Now how the division, how we are going to classify the animal kingdom. सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? Level of organization, it is cellular level. Now if the cellular level is there, symmetry is absent, coelom is absent, then the phylum is Porifera. उसमें phylum कौन सी हो जाएगी? Porifera हो जाएगी. सिर्फ हमारे पास क्या है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिट्री नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है. नाउ अगर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है, देन देयर इज रेडियल सिमिट्री. रेडियल सिमिट्री मतलब द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स अलोंग द रेडियस. तो उसमें क्या आता है? सिलेंट्रेटा आता है. देन अगर बाइलेटरल सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री मतलब when the body can be divided into two equal lateral halves, then the symmetry is called bilateral symmetry. ये किस में है बेटा? बाकी प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलर्स, इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमिट्री है. हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा अगेन इनमें बाइलेटरल सिमिट्री है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिट्रीज. इसी तरह से हम क्या करें? वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एनिमल्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स. दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इनको याद कैसे करेंगे? याद करना भी बहुत टेढ़ा काम है. नाउ हाउ टू लर्न दीज? सो बिल्कुल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. तो कैसे करेंगे? याद कर लीजिए. पीसी, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा बना लीजिए, प्रेम चोपड़ा बना लीजिए. पीसी प्रेम चोपड़ा. प्लेड, ऑसम, निमेटोडा भी है यहां पे, एस्केहेल्मिन्स का दूसरा नाम. सो नाइस एंड ऑसम म्यूजिक ईच हॉल कॉन्सर्ट. ओके, प्रेम चोपड़ा प्लेड नाइस एंड ऑसम म्यूजिक ईच हॉल कॉन्सर्ट. कैसे भी याद कर सकते हैं? प्रेम चोपड़ा प्लेड नाइस एंड ऑसम म्यूजिक एंड ईट हॉट चॉकलेट. कुछ भी बना लीजिए जैसे आपको याद हो सकता है. सो प्रियंका चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, जो भी आपको पसंद है. प्लेड नाइस ऑसम, नाइस एंड ऑसम म्यूजिक एंड ईट हॉट चॉकलेट. कैसे भी याद कर सकते हैं आप, अपना कुछ बना लीजिए याद करने के लिए. सो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. दिस इज अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स. चलिए आगे फाइलम शुरू करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं. सबसे पहले है फाइलम पोरीफेरा. नाम से ही पता चल रहा है पोरीफेरा. पोरीफेरा मतलब
पोर बियरिंग एनिमल्स, इसमें छेद छेद है बहुत सारे. दीज कंटेन लॉट्स ऑफ होल्स. कैन यू सी? Can you see? So many holes are there. That is why these are called as pore bearing animals. इनमें बहुत सारे holes हैं. That is why these are called as porifera. Then these are marine. Mostly पानी में मिलते हैं. वो भी कौन से पानी में? These are found in salt water. फिर these are mostly asymmetrical. इनमें कोई symmetry नहीं है. Generally कैसे भी हो सकते हैं. They can be of different shapes. The most important point which is asked many times. They have a water canal system. इनके अंदर क्या है बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम है. यही पानी सब चीजें लेके आएगा और यही वेस्ट को भी रिमूव करेगा. सो इट कम्स, ये कहां से आता है? थ्रू द ऑस्टिया. ये पानी कहां से घुसेगा? इट कम्स थ्रू ऑस्टिया, गोज इनटू द बॉडी एंड कम्स आउट थ्रू ऑस्कुलम. ये जितने भी पोर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल ऑस्टिया. ये सभी पोर्स क्या है? ऑस्टिया है. और यहां पे क्या है? ऑस्कुलम है, जिससे ये बाहर निकलेंगे. और बीच में क्या है? सारी बॉडी कैविटी है. नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. डिप्लोब्लास्टिक है तो सिलोम तो हो ही नहीं सकती. ओके, अब प्रोटेक्शन होनी चाहिए इसके लिए. प्रोटेक्शन के लिए क्या है? हार्ड आउटर कवरिंग है, जो इसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं. एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, साइकॉन, स्पॉन्जिला. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल स्पॉन्जेस. द नेक्स्ट वन इज सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा में सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं जो आपने सबसे ज्यादा सुने हुए हैं. द एग्जाम्पल्स कौन से हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमो. ये आपने नाम सुने हुए हैं, पहले भी देखे भी हुए कभी कभी. देखिए, दीज आर जेलीफिश, दिस इज सी एनिमोन, दिस इज फाइजेलिया एंड हाइड्रा तो आपने पहले भी देखा हुआ है. सो सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा क्यों नाम पड़ा इसका? दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स बिकॉज दे हैव सिलेंट्रोन. इनमें एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. उस बॉडी कैविटी का नाम क्या है? सिलेंट्रॉन. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेट्स बोलते हैं. ओके, द बॉडी हैज टू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक. देन दीज आर ऑलवेज फाउंड इन कॉलोनीज. फॉर एग्जांपल कोरल्स. कुछ सिंगल लिविंग भी होते हैं जैसे सी एनिमोन. ओके, सो दीज आर सिलेंट्रेट्स. डिप्लोब्लास्टिक है. इनमें कौन सी सिमेट्री मिलती है बेटा? रेडियल सिमेट्री मिलती है. So these are general characteristics of kingdom phylum Coelenterata, not kingdom phylum Coelenterata. The next one is platyhelminths. Platyhelminths नाम से ही पता चल रहा है. These are also called as flatworms. Why these are called flatworms? Flat में रहते हैं because their body is flat dorso-ventrally. जैसे चप्पल रहती है बिल्कुल वैसे flat है, dorso-ventrally flat है. That is why these are called as flatworms. Okay, now can you see their body can be divided into two equal lateral halves. ये देखिए. So ये कैसे हुए? कौन सी सिमेट्री है इसमें? Which type of symmetry is present? Bilateral symmetry. कौन सी सिमेट्री है? Bilateral. All the three worms will have bilateral symmetry. सभी में 3 germ layers हैं. All the 3 are ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती. अब ये कहाँ मिलते हैं? आइदर दे आर फ्री लिविंग और दे आर पैरासिटिक. या तो फ्री मिलेंगे पानी के अंदर या फिर दे आर पैरासाइटिक ओवर द होस्ट बॉडी. होस्ट की बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थ्स. ओके, थैंक यू.